Hello friends. Today we will start with the first chapter of economics, class 12, circular flow of income. Friends, this is the first unit of 12th economics, national income and related aggregates. And this whole unit is of 10 marks. So today we will be starting with the first chapter from the book. Okay. So let us start. First of all, if we observe in a particular business enterprise, there is production, then income, and next one is expenditure, which also leads to production. Production में what happens, income is generated, income के अंदर income is distributed like rent, interest, profit, wages, and this income enters into expenditure, and this expenditure leads to production. So there is a circular flow of income. Production leads to income generation, this income leads to distribution, and expenditure is done on the goods and services which are produced by the firms. Now, one more topic related to this one. Suppose we take households and firms. First of all, these households supply factor services to the firms like land, labor, capital, and enterprise. So households are providing land, labor, capital, enterprise to firms, and firms in return are doing production and providing goods and services to the households. During this flow, we are not taking money into picture. Only like households are giving factors services and firms are giving goods and services in return. So this one is known as real flow. In real flow, we are not involving money. Now, in another case, if we take households and firms, in this case, we will involve money. Now, because households have given factor services to the firms, now factor services will give factor payments in return. Factor payments. For land, they will give rent. For labor they will give wages. For capital, interest, and entrepreneurship, profit. Firms are giving factor payments to the households. Now, households will utilize these payments for purchasing goods and services, expenditure on goods and services. So here we are talking about money. Money is involved in all the transactions because firms are paying to households in terms of money, and households are purchasing the goods and services which are produced by the firms. Because we are involving money, this one is known as money flow.
In previous case, uh, only there was a transfer of goods and services, so it was known as real flow. But in another case, we are involving money, so this concept is known as money flow. And if we combine these two diagrams into a single one, which will look from the book, that is known as circular flow of income. So now we can come to the book straight away. First page. Topic 1.2, meaning of circular flow of national income. So first of all, we can read the definition. It refers to the cycle of generation of income in the production process. अभी हम लोगों ने तीन बनाए थे. पहला था प्रोडक्शन, तो जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. फिर दूसरा हमने आए इनकम पर, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फिर हम आए एक्सपेंडिचर पर, एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउसहोल्ड्स टू फर्म्स इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय फर्म. तो जो भी हमने शीट में डायग्राम बनाई थी, द सेम डायग्राम इज गिवन इन योर बुक ऑन नेक्स्ट पेज. So this is the diagram you can draw in this. Production, income phase and expenditure phase. Okay. Now by looking at this diagram, first हमारा जो ऊपर है प्रोडक्शन फेज, यानी इनकम जनरेट होती है. तो लेफ्ट साइड में दे रखा है जनरेशन फेज. इन दिस फेज फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज, और उससे फिर हमारी इनकम जनरेट होती है, विच इज डिस्ट्रीब्यूशन फेज. तो दिस फेज इन्वॉल्व्स द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट फ्रॉम फर्म्स टू हाउसहोल्ड्स. और थर्ड हमारा है एक्सपेंडिचर या डिस्पोजिशन फेज. इसमें इनकम रिसीव्ड, जो इनकम हम रिसीव कर रहे हैं फर्म से in the form of factor incomes that is spent on goods and services produced by firm. So I hope this topic is clear to everybody. Now, what you can do is, then we have done topic 1.2. Then we can do straight away topic 1.4, that is connected with this topic. Stock and flow we can do afterwards. So we can come to this topic. Stock and flow we'll do after this topic. Types of circular flow. Now, जो मैंने बेटा आपको भी एक्सप्लेन करा, वो अब आपको यहाँ पर आएगा. फर्स्ट इज रियल फ्लो. तो रियल फ्लो में क्या है, जो भी मैंने आपको बताया, हाउस होल्ड्स और फर्म्स. हाउस होल्ड फर्म्स को क्या दे रहा है, फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज. और फर्म्स बदले में हाउस होल्ड्स को दे रहा है गुड्स एंड सर्विसेज. तो रियल फ्लो की डेफिनेशन पढ़ेंगे. रियल फ्लो रेफर्स टू फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउसहोल्ड्स टू फर्म, यानी जो फैक्टर सर्विसेज फ्लो कर रही है हाउसहोल्ड से फर्म, क्योंकि हाउसहोल्ड ही दे सकता है. एंड करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स टू हाउसहोल्ड्स. बदले में फर्म हाउसहोल्ड को क्या दे रही है, गुड्स एंड सर्विसेज. इसमें एक आपको दे रखा है, डायग्राम को एक्सप्लेन करा हुआ है. देन इट इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो. तो आई होप कि रियल फ्लो इज क्लियर टू एवरीवन, क्योंकि यहाँ पे हम पैसे की बात नहीं कर रहे, कोई मनी इन्वॉल्व नहीं कर रहे, जस्ट ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो इसको हम बोलते हैं रियल फ्लो. और अगर हम मनी को इन्वॉल्व करेंगे, जैसे कि हम सेम पेज में नीचे आएंगे, अब आप देखिए, अब मनी इन्वॉल्व करेंगे क्योंकि फर्म्स ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज कर रहे हैं हाउस होल्ड से. तो इट इज अ ड्यूटी ऑफ द फर्म टू पे द फैक्टर पेमेंट्स टू द हाउस होल्ड. तो नेचुरली मनी में देंगे. लैंड को रेंट दे दिया, लेबर को वेजेस दे दी, कैपिटल को इंटरेस्ट दे दिया, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट दे दिया. ये सारी पेमेंट्स फर्म
हाउस होल्ड को देगी। अब हाउस होल्ड का पैसा आ गया, अब वो क्या करेगा इस पैसे से, जैसे आप और हम लोग हैं, हमारे पास इनकम आती है, हम क्या करते हैं, हम सोप खरीदेंगे, हम ऑयल खरीदेंगे, हम टूथपेस्ट खरीदेंगे, हम राइस खरीदेंगे, ओके, हम वीट खरीदेंगे, तो हम फर्म से तो खरीदेंगे, तो ये सारा पैसा वापस फर्म्स के पास चला जाएगा। तो ऊपर वाला जो एरो है टॉप पे, अगर हम हाउस होल्ड क्या करेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। डायग्राम के लेफ्ट पे डेफिनेशन इज गिवन दैट वी कैन रीड, मनी फ्लो रेफर्स टू फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड। तो आपको एरो के पॉइंट भी सही तरफ रखने हैं। फर्म हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट्स दे रहा है, तो एरो हाउस होल्ड की तरफ जाएगा फॉर द फैक्टर सर्विसेज, एंड करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, अब एरो उस तरफ जाएगा। क्यों कर रहा है, फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म्स। आई होप इट इज क्लियर कि फर्म ने फैक्टर पेमेंट्स दी और हाउस होल्ड ने उसी पैसों से परचेज करा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म्स। अब रियल फ्लो और मनी फ्लो को, इसके बीच में डिफरेंस भी आ सकता है, और मनी फ्लो का दूसरा नाम है नॉमिनल फ्लो। रियल फ्लो और नॉमिनल मनी फ्लो में डिफरेंस गिवन है, दिस ऑल्सो यू हैव टू कवर। तो मीनिंग में क्या है, रियल फ्लो में फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड, और मनी फ्लो में है फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स। देन सेकंड डिफरेंस क्या है, काइंड ऑफ एक्सचेंज। रियल फ्लो में सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, और मनी फ्लो में मनी का एक्सचेंज होता है। ठीक है, देन डिफिकल्टी इन एक्सचेंज, ऑल्टरनेटिव नेम। तो इट इज अ सिंपल टॉपिक, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, इट इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब रियल फ्लो मनी फ्लो की डायग्राम को एक साथ अगर हम क्लब कर दें, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा सर्कुलर फ्लो इन सिंपल इकोनॉमी टू सेक्टर। वैसे थ्री सेक्टर फोर सेक्टर भी होते हैं, बट दे आर नॉट इन आवर करंट सिलेबस, हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में टू सेक्टर है, टू सेक्टर में सिर्फ फॉर्म्स और हाउस होल्ड लेंगे, थ्री सेक्टर में गवर्नमेंट ले लेते हैं, फोर सेक्टर में फॉरेन सेक्टर ले लेते हैं, बट इस साल वो हमारे सिलेबस में नहीं है। वी हैव टू स्टडी ओनली टू सेक्टर। टू सेक्टर में क्या क्या आ गया, हाउस होल्ड आ गया और फॉर्म्स आ गया। अब हम डायग्राम देखेंगे इसमें, एक तरह से ये क्लोज इकोनॉमी है व्हेन वी से टू सेक्टर। अब आप देखिए, जो मैंने आपको पहले समझाया, शीट पे डायग्राम बनाई, उसी दोनों डायग्राम को क्लब कर दिया। ठीक है, अगर आप आउटर एरोज देखेंगे इस डायग्राम की, फिगर 1.4 की, व्हाट विल सी, अगर आउटर एरोज देखें, आउटर एरोज में क्या है, हाउस होल्ड फर्म्स को फैक्टर सर्विस दे रहा है, और नीचे में जो आउटर एरो है वो गुड्स एंड सर्विसेज जा रहे हैं, तो ये रियल फ्लो हो गया। अगर हम इनर एरोज देखेंगे ना, तो फर्म्स फैक्टर पेमेंट्स दे रहा है हाउस होल्ड को, और हाउस होल्ड जो है वो फर्म्स को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहा है ऑन गुड्स एंड सर्विस, तो अंदर वाला मनी फ्लो हो गया। तो दोनों रियल फ्लो मनी फ्लो को क्लब कर दें, तो जो हमारे बोर्ड में टॉपिक है, चैप्टर है सर्कुलर फ्लो इनकम, तो हम ये वाली डायग्राम बनाएंगे। And you can read the theory also given on the left of the diagram. तो अगर आपके बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि draw the diagram for circular flow of income और explain the circular flow of income in two sector economy, तो आपको ये डायग्राम बनानी है। आउटर एरोज रियल फ्लो है, इनर एरोज मनी फ्लो है। तो दिस टॉपिक इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। I think it will be clear to everybody. Circular flow income, very easy topic. Now we move to next topic, which is given on page 1.2, and that topic is stock and flow. तो मैं पहले आपको बेटा इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ओके, आफ्टर एक्सप्लेनेशन विल कम बैक टू द बुक। देखिए,
Okay. Now, suppose आप दिल्ली से जयपुर जा रहे हैं और इसका जो डिस्टेंस है ना, दैट इज 250 किलोमीटर। नाउ, आप दिल्ली से जयपुर जा रहे हैं, आप चाहे कार से जाएं, चाहे स्कूटर से जाएं, चाहे पैदल जाएं, बट दिस डिस्टेंस विल रिमेन द सेम। यानी कि इट कैन बी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप अगर मेजर करेंगे ना, तो ये सेम रहेगा डिस्टेंस। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं स्पीड क्या है, तो स्पीड के लिए क्या है कि दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। सपोज करो कि ये जो डिस्टेंस है, आपने या मैंने, वी हैव कवर्ड इन 5 आवर्स। 5 घंटे में हम लोग वहां पर पहुंच गए। इन 5 आवर टाइम टेकन इज 5 आवर्स। तो व्हाट विल बी द स्पीड? 250 किलोमीटर अपॉन टाइम 5 आवर्स। तो स्पीड आपकी आ जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। लेकिन क्या आपने कार जो दिल्ली से स्टार्ट करी और जयपुर तक गए, क्या थ्रू आउट 50 रहा? नहीं, कभी कभी 80-90 भी हुआ होगा जब रोड खाली मिली होगी। और जब रोड पर कोई डिस्टरबेंस, कोई हिंड्रेंस आ गई, तो स्पीड 10, 20, 30, 40 भी होगी। ओके। तो मैं आपको कह रहा हूँ बेटा, आपने कभी 20-30 चलाया, कभी आप 70-80 चला रहे हैं, तो आप मुझे कहेंगे सर मैं दिल्ली से स्टार्ट हो रहा हूँ, जयपुर तक पहुंच रहा हूँ, ओवरऑल मुझे कितना टाइम लगा, उसके हिसाब से आप स्पीड निकालिए। तो दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वो एवरेज है 50 किलोमीटर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं नाप सकते आप नाप सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आप किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं नाप सकते, रिमेंबर, आई एम रिपीटिंग। आप स्पीड को नाप सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। दिल्ली से जयपुर जाने दिए, ओवरऑल हम निकालेंगे। ओके। तो देखो डिस्टेंस जो है ना, डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। बट जो स्पीड है, स्पीड कैन बी मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दो चीजें हमारे सामने आ गई। डिस्टेंस है विच कैन बी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। स्पीड है, वो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं मेजर कर सकते, दैट कैन बी मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो अब देखिए एक कॉन्सेप्ट आ गया हमारा, जो एट अ पर्टिकुलर टाइम मेजर करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज स्टॉक। और जो हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेजर करेंगे, इट इज नोन एज फ्लो। तो स्टॉक क्या है? विच कैन बी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। और फ्लो क्या है? विच कैन बी मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो डिस्टेंस एग्जांपल है स्टॉक का, और फ्लो एग्जांपल है, स्पीड एग्जांपल है आपका फ्लो का। स्टॉक के अंदर आप एक चीज और कह सकते हैं, इट हैज नो टाइम डायमेंशन। यानी टाइम पे डिपेंड नहीं है, आप सुबह नापे, दोपहर नापे, शाम को नापे, कल नापे, परसों नापे, डिस्टेंस विल रिमेन द सेम। लेकिन जो फ्लो है, ये टाइम पर डिपेंड करता है। सपोज ये टाइम 5 आवर्स की जगह 6 आवर्स लेता, तो स्पीड चेंज हो जाती। 7 आवर्स लेता तो स्पीड चेंज हो जाती। 4 आवर्स जल्दी पहुंच जाता तो भी स्पीड चेंज हो जाती। ओके। तो इसमें टाइम डायमेंशन है। तो इट हैज टाइम डायमेंशन। ओके। तो बेटा रिकैप कर रहे हैं, स्टॉक का मतलब क्या है? विच कैन बी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। फ्लो जो है, इट कैन बी मेजर्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब देखिए एक दो एग्जांपल्स हो। एक वाटर टैंक है। अब वाटर टैंक में कितना वाटर है?
आप किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर सकते हैं। तो ये आपका स्टॉक हो गया, क्योंकि आप इसको मेजर कर सकते हैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम कि 500 लीटर है, 1000 लीटर्स है करके। लेकिन वही अगर आपकी कोई रिवर फ्लो कर रही है, रिवर है, तो रिवर में आप क्या बता सकते हैं कि इतना पानी फ्लो कर रहा है पर मिनट, पर सेकेंड, तो डेट विल बिकम अ फ्लो। ये आपका फ्लो हो जाएगा, क्योंकि आप एक पॉइंट ऑफ टाइम में नहीं नाप सकते कि इस रिवर में इतना लीटर ऑफ पानी है टोटल। नो, ये फ्लोइंग रिवर है, तो यहाँ पे आप ये बता सकते हो कि इतना पानी फ्लो कर रहा है पर मिनट, पर सेकेंड। तो एक क्लू और भी है, जिस भी वर्ड के आगे पर वर्ड लग जाए, PER, पर, वो बन जाएगा फ्लो। ओके, या सपोज करो किसी की वेल्थ है, तो वेल्थ इज अ स्टॉक, क्योंकि आप आज की डेट में बता सकते हो आपके कितना मकान है, प्रॉपर्टी है, कितना आपका कैश है, कितना ज्वेलरी है। लेकिन अगर आपसे अगर पूछे आपकी इनकम क्या है, आप बोलेंगे 50,000। भाई 50,000 क्या है, पर मंथ है, पर वीक है, या पर ईयर है। जब भी आपने पर वर्ड लगाया, दैट विल बिकम अ फ्लो, क्योंकि वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम है। ओके, तो अब हम इस टॉपिक को बुक से पढ़ते हैं। तो आई होप कि ये टॉपिक समझने के बाद बुक से आपको बड़ा इजी और इंटरेस्टिंग लगेगा। देखिए, स्टॉक। तो स्टॉक हेडिंग में डेफिनेशन मैं पढ़ता हूं आपके लिए। स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, नाउ इसमें एग्जांपल्स दे रखे हैं। स्टॉक ऑफ गुड्स इन द गोडाउन एज ऑन 31st Jan 2019। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम भी दे रहे हैं ना, 31st Jan। ओके, और कहते हैं इट स्टॉक वेरिएबल्स आर नॉट टाइम डायमेंशनल। सम मोर एग्जांपल्स दे रखे हैं। नेशनल वेल्थ, हमारी कंट्री की वेल्थ एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, पूरी कंट्री का कैपिटल एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, पूरे कंट्री की मनी सप्लाई एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। ये सारे एग्जांपल्स स्टॉक के हैं। देन वी कम टू फ्लो। फ्लो वेरिएबल का क्या है, refers to that variable which is measured over a period of time। ठीक है, एग्जांपल्स दे रखे हैं। अब जैसे बर्थ रेट है, तो बर्थ रेट हम नापते पर 1000। बर्थ रेट, डेथ रेट, या नेशनल इनकम इन द ईयर 2018, तो वो आपका फ्लो हो गया। और इसमें एक वाटर टैंक का एग्जांपल गिवन है बुक के अंदर। तो स्टॉक ऑफ वाटर इन अ टैंक, स्टॉक हो गया, लेकिन किस फ्लो से पानी जा रहा है टैंक के अंदर, दैट इज अ फ्लो। और नेक्स्ट पेज पे आपको दे देगा स्टॉक एंड फ्लो में डिफरेंसेस। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, स्टॉक एंड फ्लो। तो देखिए, पहला डिफरेंस आप क्या करेंगे, जो आपने मीनिंग समझा कि स्टॉक रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। फ्लो के अंदर रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ। तो फर्स्ट डिफरेंस तो आपका मीनिंग का हो गया। तो ये 3 मार्क्स में आ सकता है या 4 मार्क्स में। टाइम डायमेंशन वाला पॉइंट कि स्टॉक में कोई टाइम डायमेंशन नहीं, आप कभी भी नापो। ये नहीं कि धरती रोटेट हो रही है, 250 किलोमीटर जो है वो ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा। नो, दिल्ली टू जयपुर अगर 250 किलोमीटर है, आपके घर से लेके आपका स्कूल 10 किलोमीटर है, तो सेम ही रहेगा। इट इज नो टाइम डायमेंशन। हाँ, आप क्या स्पीड लेते हैं, कितना टाइम लेते हैं आप उसमें, तो फ्लो के अंदर वी कैन से इट हैज अ टाइम डायमेंशन एज इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नेचर में अगला बेसिस है नेचर। हम स्टॉक को कैसे सकते हैं, स्टैटिक कॉन्सेप्ट कि भाई आप जो डिस्टेंस है दिल्ली जयपुर 250 स्टैटिक है। लेकिन जो फ्लो इट इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट, आपने कितने आवर्स में कवर करा डिस्टेंस, उससे चेंज हो जाएगी आपकी स्पीड। तो डायनामिक कॉन्सेप्ट है। एंड सम मोर एग्जांपल्स आर देयर, मतलब हजारों एग्जांपल्स है। एनी एग्जांपल यू कैन टेक। तो बुक में जो एग्जांपल है पॉपुलेशन एज ऑन 31st March, दैट इज अ स्टॉक। नंबर ऑफ बर्ड्स, दैट इज अ फ्लो, क्योंकि बर्थ आपका पर 1000, पर मिनट, पर आवर कर सकते हैं। देन टोटल नंबर ऑफ मारुति कार्स इन दिल्ली,
और मारुति कार्स मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग जनवरी, एक एग्जांपल ये हो गया। मनी सप्लाई, आज हमारी कंट्री में कितना पैसा है सर्कुलेशन में, दैट इज अ स्टॉक। लेकिन हम एक्सपेंडिचर कितना करते हैं, वो हमारा फ्लो हो जाएगा। नेशनल वेल्थ इज अ स्टॉक एंड नेशनल इनकम इज अ फ्लो। क्वांटिटी ऑफ व्हीट स्टोर्ड, वो स्टॉक है, और क्वांटिटी ऑफ व्हीट प्रोड्यूस इज अ फ्लो। आप में से जिनके पास अकाउंट्स है, मैं आपको एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ। देखिए, जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं, तो बैलेंस शीट में क्या होता है, देखो बैलेंस शीट के नीचे आप लिखते हैं एज ऑन 31 मार्च। तो 31 मार्च वाले दिन आपकी जो डेटर्स हैं, आपकी जो लाइबिलिटीज हैं, वो कितना है, ठीक है। लाइक कैश इन हैंड कितना है, फर्नीचर कितना है, आपके एसेट्स कितनी है, ठीक है, आपका डेटर्स कितना है, कैश इन हैंड कितना है, बिल्स रिसीवेबल कितना है, बिल्डिंग कितना है, प्लांट एंड मशीनरी कितना है एज ऑन 31 मार्च। लाइबिलिटी साइड में आ जाओ, आपके क्रेडिटर्स कितने हैं एज ऑन। तो जब हम एज ऑन देखते हैं ना, तो यानी बैलेंस शीट भी एक स्टॉक का एग्जांपल बन सकता है। ह्यूमैनिटीज या साइंस में भी इकोनॉमिक्स होती है, तो वहां तो अकाउंट्स का एग्जांपल नहीं ले सकते। तो जो अकाउंट्स के बच्चे हैं, दे कैन अंडरस्टैंड इजीली। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या लिखते हैं, फॉर द ईयर एंडेड। सपोज आपका 10 लाख प्रॉफिट आया, तो किसी एक पर्टिकुलर डेट का प्रॉफिट नहीं है। दिस प्रॉफिट रिलेट्स टू द प्रॉफिट ऑफ होल ईयर फॉर द ईयर एंडेड। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ फ्लो। तो इसी के साथ बेटा वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट चैप्टर। इन नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टार्टिंग विद द सेकंड चैप्टर। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, वी कैन रीकैप। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा सर्कुलर फ्लो। उसके अंदर हमने प्रोडक्शन इनकम एक्सपेंडिचर के थ्रू पढ़ा कि प्रोडक्शन में इनकम जनरेट होती है। फिर इनकम फेज पर आते हैं, तो इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस। अब इनकम पहुंच गई हाउस होल्ड के बाद, वो एक्सपेंडिचर करेंगे। किस चीज पर एक्सपेंडिचर करेंगे, ऑन द गुड्स प्रोड्यूस बाय द फर्म्स। तो एक सर्कल है। अगर आप भी देखेंगे हमारी लाइफ के अंदर बेटा, सर्कल ही तो कंप्लीट हो रहा है। आपके पेरेंट्स इनकम ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं, या तो जॉब कर रहे हैं, या फिर वो बिजनेस कर रहे हैं। तो आपके घर में इनकम आ गई। इनकम आ गई, तो फिर आप क्या करते हैं, उसको एक्सपेंडिचर करते हैं। किस चीज पर एक्सपेंडिचर करते हैं, जो भी फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज बना रही है। उसके अंदर थोड़ा इन डेप्थ हमने रियल फ्लो और मनी फ्लो पढ़ लिया। रियल फ्लो में क्या था कि हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज दे रहे हाउस होल्ड को, हाउस होल्ड दे रहा है फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज, और फर्म्स क्या कर रहा है, बदले में गुड्स एंड सर्विसेज बना रहा है फॉर द हाउस होल्ड। दैट इज रियल फ्लो। मनी फ्लो में क्या था, फर्म्स हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट्स पे कर रही है, और हाउस होल्ड उस फैक्टर पेमेंट्स को यूज क्या कर रहे हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय फर्म्स। इन दोनों को इकट्ठा बना दो, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हो गया। उसके बाद हमने स्टॉक एंड फ्लो पढ़ा। स्टॉक क्या है, विच कैन बी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। आप इस डेफिनेशन को लर्न कर लो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। फ्लो क्या है, विच कैन बी मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। स्टॉक के लिए हम एक चीज और कहते हैं कि इट हैज नो टाइम डायमेंशन। और फ्लो के लिए क्या कहते हैं, इट हैज टाइम डायमेंशन। ओके, तो ये चैप्टर खत्म है। बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, आपको आइटम्स दे देंगे और आपको बताना है कि क्या वो स्टॉक है, क्या वो फ्लो है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, जब पूरा हमारा ये यूनिट खत्म हो जाएगा, ये जो फर्स्ट यूनिट है, इसके अंदर 4 चैप्टर है। यूनिट का नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। उसमें से एक यूनिट हमने आज, यूनिट में से एक चैप्टर आज हमने कवर करा है। नेक्स्ट टाइम सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, चारों यूनिट्स हम करेंगे। हमारी जो फर्स्ट यूनिट है 12th सिलेबस इकोनॉमिक्स में, दैट इज ऑफ 10 मार्क्स, दैट विल बी कंप्लीटेड। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, इसमें हम थ्योरी भी पढ़ेंगे, इसमें हम डायग्राम्स भी करेंगे। प्लस दिस चैप्टर, दिस यूनिट कंटेन्स लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स आल्सो। तो वो हम आराम आराम से एक एक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से दिस चैप्टर इज ऑफ 10 मार्क्स। इसके बाद व्हेन वी कंप्लीट द यूनिट, आई विल टेल यू द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 1 मार्क के क्वेश्चन, 3-4 मार्क के क्वेश्चन, 6 मार्क्स के क्वेश्चन,
और जो भी इसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, कुछ केस स्टडी टाइप से हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, that all questions will be covering. So I hope this chapter everybody has understood. So you revise from the book. If you have any doubts, then you can message me. अगर आप YouTube पर पढ़ रहे हैं इस चैनल को, YouTube चैनल पर ही पढ़ रहे हैं, तो आप इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और अगर आप वेबसाइट के थ्रू पढ़ रहे हैं तो उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं. तो थैंक यू वेरी मच. We have completed first chapter, and then in next video we will carry on with the chapter number 2. Thank you.